बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से साकिब सलीम बट। नाज़रीन, 2 जनवरी की शाम को काहना के इलाके के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर गैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके बहन और बेनोई को कत्ल कर दिया। हम उस टाइम धल्लो की गांव के अंदर मौजूद हैं, मकतूल महमूद उर्फ मुन्ना के घर में, जहाँ पर ये वाक़या सबसे पहले पेश आया कि उसमें मुलज़िम जो थे फराज, वाक़े के मरकज़ी मुलज़िम हैं फराज, वो अपनी बहन के घर में आते हैं और फैमिली के मुताबिक जब फायरिंग के वाक़े से कुछ ही मिनट पहले ये एक किचन है, इस किचन के अंदर मकतूला रिफ़त सारी फैमिली के लिए बिरयानी बना रही थी और इस किचन में खाना बनाने के बाद जो सारे उनके मेहमान भी आए हुए, यहाँ बिल्कुल सामने अपने वो कमरे में जो है दाखिल होती है मकतूला और वहाँ पर जो है उसको फायरिंग कर कर कत्ल कर दिया जाता है। अब हम इस टाइम मकतूल महमूद उर्फ मुन्ना की वालदा शाहिदा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या जब आप घर पे थे आपने क्या देखा, फायरिंग किसने की है और कहाँ पे थी रिफत? सर रिफत ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਵਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਪਕਾਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰੀ ਇਸ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਫਤਖਾਰ ਭਾਈ ਤੇ ਬਾਸ, ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। 2 ਬੱਚੇ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਸੀ ਨੀਚੇ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਕੋਲ। ਆਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ, ਇਹ ਉਧਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸकी थी? ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਸ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ। शादी की तैयारियां वगैरह आप सारे ਇਹ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਵੇ ਸ਼ੋਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਬਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੇਫ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਹੁਣ ਹੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੁੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਿੰਨੋਂ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੰਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ठीक है ना। ये मुंडा जड़ा ये तिन्ने भरा आए ने। यानी कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये पहली शादी में मतलब महमूद की पहली शादी में 3 बच्चे थे। हाँ। और रिफत की पहली शादी थी? रिफत की भी पहली शादी दे विच 4 बच्चे पिछे छड़ के आई। रिफत की भी 2 शादी हैं? हाँ जी, वो भी 4 बच्चे छड़ के आई, 1 बेटी ते 3 बेटे ते साढ़े 3 बेटे ही है, ठीक है। इन्हां दी मां गई नूं 2 साल हो गए, उन्होंने उन्हें तलाक दे दी। ये अपने घर खुश सी, असी भी आंदे जांदे सी, मैं भी खुश सां कि चलो इहदी मां आंदी जांदी है, कोई दुश्मनी नहीं गी, चलो अपने घर वसदे पे। बच्चियां 2 नूं रिफत साਂਭਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ मैं थल्ले साਂਭदी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, 2 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਰਾ ਲਾ, ਬੜਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਵਕਾਰ, ਇਹਨੇ ਬੋਸਕੀ ਜੀ ਕਲਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਫਤਖਾਰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਫਤ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗੇ, ਖਾਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਾਰੇ ਵੱਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਖਾਰਾ ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਨੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੋਂ, ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਈ। ਉਹ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੂ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਕ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਕਾਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4 ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਦੀ ਭੈਣ ਰਿਫਤ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡ ਆਈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਸ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਵਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੁੰਨਾ ਖਰੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚਾਚੂ ਮੁੰਨਾ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋੜਤੀ, ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਨ ਤਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋੜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ऐसे सर होया, सानू बाद च कुछ पता नहीं की। जी, जैसे कि आपने सुना कि ये फायरिंग के जब वाक़या हुआ, बाप के पास दुकान में ये 2 बच्चे उनके साथ वहाँ पे मौजूद थे जो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे हैं। हम बात करते हैं उनके मामू से जो वाक़े के वक्त यहाँ पर आए। आपका नाम क्या है? अब्बास अली। अब्बास साहब, जब से बता रही हैं हमशीरा का, आप बहन के साथ नीचे बैठे हुए थे, आपकी बेटी की शादी है? हाँ जी, मेरी 2 बेटियों की शादी है 10 तरीक को। तो आप शादी की तैयारियों में सारे मशगूल थे और फैमिलियां वगैरह भी? ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਕਾਰਨਾਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਰਿਫਤ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਫੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਮੁੰਨੇ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਨਾ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, 4 ਫਾਇਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਜੇ, 5-6 ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ। यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ वकार ने आके पैन ਨੂੰ मारिया और फराज ने बेनोई ਨੂੰ मारिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि आपने सुना कि उनके मामू का ये बयान था कि फायरिंग के वक्त हम जब सीधा सामने ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे तो मुलजिम ने उनकी तरफ भी डायरेक्ट फायरिंग की, जिसकी वजह से वो साइड पे हट गए। अब हम चलते हैं दुकान की तरफ जहाँ पर वाक़या हुआ और महमूद उर्फ मुन्ना को कत्ल किया गया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मकतूल महमूद उर्फ मुन्ना की दुकान में। ये इसकी दुकान है जो यहाँ पे आसान के साथ के अंदर LCD, फ्रिज, मोबाइल, ये सारी शॉप जो है वो काफ़ी अरसे से 8-10 साल से ये यहाँ पे कारोबार कर रहा था और जो घर के बिल्कुल करीब वाक़या है। अब फायरिंग के जब वाक़या पेश आया तो मुन्ना अपनी दुकान में मौजूद था और यहाँ पर वहाँ पे अपने काउंटर के ऊपर बैठा हुआ था। यहाँ पे अब उसके वालिद साहब बैठे हुए हैं, अनवर साहब। हम उनसे जानते हैं कि फायरिंग के वाक़े के वक्त आप या दुकान में ही थे या कहीं और थे? नहीं, मैं बाहर था। ठीक है, मेरा बेटा ही दुकान पे था। तो ये वाक़या जब पेश आया आपको कैसे इत्तला मिली, किसने किया, क्या हुआ? हमें टेलीफोन आया कि मुन्ने को फायर लग गए हैं। ठीक है, हम आए इधर तो मुन्ना मरा हुआ पड़ा, डेड बॉडी पड़ी थी उसकी। तो ये जो इस तरह उनकी वालदा बता रही हैं और उसके एक मामू ने बताया कि वो उनके फैमिली का आना जाना था, तो गैरत के नाम पे कत्ल की शादी को तो 5वां साल चल रहा था, तो एकदम कि क्या सारा कुछ हुआ? सर ये 2 साल पहले ना वो जो पहली बीवी थी ना उसको तलाक दी थी इन्होंने। ठीक है, मुन्ना भाई ने। तो दूसरी बीवी जो थी वो ऊपर रह रही थी, पहले वाली नीचे रहती हमारे साथ। ठीक है, तो फिर उन्होंने तलाक दे दी, वो चले गई, उसने जाके शादी कर ली। ठीक है, तो मुन्ना भाई तो उसकी बीवी इधर रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो उनकी माँ भी आती थी, बहनें भी आती थी, मासी भी आती थी, फूफियाँ भी आती थी, भाई भी आते थे। ठीक है, तो ये तो पता ही नहीं था इन्होंने ये काम कर लेना। अनवर साहब, जैसे कि बता रहे हैं, पुलिस भी कह रही है और ये फैमिली भी कह रही है, जो सुनने में भी तक आया है कि सबका आना जाना था, आप भी यही कह रहे हैं। तो वाक़े के वक्त भी वो यहाँ पे मौजूद थे, शादी को 4-5 साल हो गए थे। आप कह रहे हैं कि वो बड़े खुश थे घर में और 3 बच्चे जो महमूद की पहली बीवी में से थे, वो रिफत बीबी, उनको पाल रही थी अपने बच्चों की तरह। 2 बेटे वो 2 बेटे बाप के पास थे, एक हमारे पास रहता, 6 माह का था जो बीचले वाला है। ठीक है, वो हमारे पास रहता था, हम उसकी परवरिश करते थे। 2 ऊपर माँ बाप के पास रहते तो थे। आपको क्या लगता है कि इतनी वजह एक्सट्रीम की क्या हो सकती है कि 3 भाई आए और तीनों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई? एक ने आप लोगों के मुताबिक कि बहन को मार दिया, फराज ने मुन्ने को मार दिया, तो ये क्यों वाक़या पेश आया? सर ये तो हमें पता नहीं ना, उन्होंने सुलह करके क्या किया है, सुलह करके उन्होंने मारा है और अतमाद में लाकर मारा है। ठीक है ना। तो शादी तो इन्होंने पसंद की थी कि अरेंज मैरिज थी? नहीं, पसंद की शादी थी, तकरीबन 5वां साल लग गया है।
ठीक है 5 साल। इससे पहले कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या भाइयों ने आके कोई इस तरह कोई लड़ाई की हो या फायरिंग की हो, पहले वाकया पेश आया इस तरह का? नहीं जी कोई वाकया नहीं है, ठीक तो है। 5 साल के बाद जाके उन्होंने 5 साल के बाद यकदम वो आए हैं, ठीक है। तो इधर एक कस्टमर बैठा हुआ था, उसको आते ही वो मुन्ना भाई को जो बताते हैं वो उसको भी बुलाया था पुलिस ने। वो इधर बैठा हुआ था, उसको आकर उसने दफ़ा या यहाँ से वो उठा है, वो चले गया। वो बुआ नंगे आइए थे, मुन्ने ने क्या की गल है मारना है मैनू, तो उन्हें फैर मारता है। फिर 8 गोलियां लगियां ने जी, 6 या 8 लगियां ने, ठीक है। फिर ऊपर भी गोली चलती पई है, ऊपर जाके थले मारिया है फराज ने, ऊपर मारिया है वकार ने, ठीक है। एक उनका भाई था, वो तीसरा तो जो था, तो उधर गए हैं, वो चांगरे मारते गए और तारें टूट गई हैं वापटा की, अभी भी तारें टूटी हुई पड़ी हैं, ठीक है। उन्होंने ज़्यादती की है सर, बहुत ज़्यादती की है उन्होंने, ठीक है। ये तो वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हमारी अपील है, हमें इंसाफ मिल जाए। जी, जैसे कि आपने सुना कि फैमिली का ये कहना है कि उनको इंसाफ दिया जाए। अब वाक़े के बाद जब दोनों मियाँ बीवी को कत्ल किया गया, कत्ल करने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के भिजवाया गया, तो मकतूल मुन्ना के मामू महबूब आलम जो है वहाँ पे सारा थे, वहाँ पे क्या मनाजर थे, कितनी गोलियाँ लगी थी, क्या सूरत हाल थी, वो ज़रा बताइएगा। ये महमूद को तकरीबन 6-7 गोलियां लगी हैं और रिफत को भी इतनी 6-7 गोलियां लगी हैं। तो मुझे फ़ोन हुआ है जब तकरीबन 6 बजे से पहले मेरी बेटियों ने फ़ोन किया है कि अब्बू जी आप किधर हैं, इधर बहुत फायरिंग हो रही है, मुन्ना की किसी के साथ ना लड़ाई होगी। मैं उधर दूर बैठा था, एक मोटर मैकेनिक मेरा दोस्त है सफ़र, उसकी दुकान से मैं भागता हुआ। इधर दुकान में भी एक टाइम फायरिंग हुई है, छत पे भी एक टाइम में फायरिंग हो रही है, उधर गली में भी एक टाइम फायरिंग हो रही है। ज़ाहिर है तीनों जगह पे कोई 3 बंदे तो हैं ना जो फायरिंग कर रहे हैं। फराज ने मारा महमूद अली को, उससे बड़ा जो उसका भाई वकार है उसने वो अपनी बहन को ऊपर जाकर रिफत को मारा, और वो गली में जो फायरिंग कर रहा था वो निसार इन दोनों से बड़ा भाई है इनका। ये तीनों भाई आए, वो बच्चों ने भी बयान दिया कि तीनों ही मामू आए थे। जी, जैसे कि आपने सुना कि फायरिंग के वाक़े के वक्त फैमिली के मुताबिक फराज जो था उसने यहाँ आकर अपने बहनोई को कत्ल किया और फराज से बड़े भाई वकार ने अपनी बहन को कत्ल किया। ये सारे वाक़यात अभी तक के सामने हैं। अभी हम ASP कान्हा मौजूद रहमान से जो है गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि मुलजिम फराज जो कि इसका मरकज़ी मुलजिम है वो गिरफ़्तार हो गया और उसने अभी तक क्या इंकशाफात किए हैं। ये बताइए कि ये जो कातिल था वो कातिल कौन था, उसने क्यों कत्ल किया? जी जो थैंक यू। कान्हा में जो कत्ल हुआ वो डबल मर्डर और ऑनर किलिंग का केस था, जिसमें महमूद और उसकी बीवी रिफत का कत्ल हुआ, और उनके जो अक्यूज़ थे वो उनके भाई थे, जो रिफत बीबी है उनके भाई थे, एक फराज है एक वकार, और जो मेन अक्यूज़ड है उनमें वो है फराज ने जो इंकशाफात किए वो ये किए कि चूँकि लोग मुझे ताने देते थे तो मैं उनके लिए मौका ढूंढ रहा था कि मैं किस तरह इनका मर्डर करूँगा। तो हमने कई दफ़ा इनको बताया कि आप हमारे गांव छोड़ के इधर से चले जाएं, तो चूँकि ये नहीं जा रहे थे इसी वजह से मैंने उनको कत्ल कर दिया। और दूसरा ये कि ये कह रहे कि मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि इनको मैं मर्डर करूं, लेकिन चूँकि मुझे मौका नहीं मिला, मैं कई दफ़ा मैं उधर जाता था, उधर लोग मौजूद होते थे, जिसकी वजह से मैंने उसको कत्ल नहीं किया। इस दफ़ा चूँकि वो अकेले था, अपने जो उनकी इंस्टॉलमेंट की शॉप है उसमें बैठा हुआ था, तो ये जो फराज है वो आया और उसने फ़ायर करके उसको कत्ल किया। फिर अपनी बहन जो ऊपर घर है उनका घर में जाके उसकी कत्ल की। खातून की कोई औलाद थी और ये इसके जो बाकी भाई हैं वो इस कत्ल में मुलव्विस थे? दूसरे भाइयों का तो वो तो इन्वेस्टिगेशन में मेरे ख़्याल में पता चल जाएगा, लेकिन ख़ातून के मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन ख़ातून के बच्चे थे। ये दूसरी शादी की दूसरी शादी। जी दोनों की दूसरी शादी थी? जी दोनों की दूसरी शादी। दो बच्चे दोनों के पहले मौजूद? जी हस्बैंड के भी और वाइफ के भी। तो ये मतलब फिर ये लव मैरिज ही होगी और ये शादी के बाद दोनों एक ही गांव में रह रहे थे? एक ही इलाके में? जी बिल्कुल, एक ही गांव में एक ही घर में रह रहे थे। जी बिल्कुल।
تو ابھی تک انویسٹیگیشن میں ملزم نے کیا بتایا کہ اس نے قتل کا پلان کیسے بنایا, مطلب کسی دوست کو یا فیملی ممبر کو مزید اس میں انوالو کیا, اور باقی سارے اسلحہ برآمد ہوا, ملزم کیسے پکڑا گیا؟ ملزم تو 20-21 روز سے فرار تھا. ملزم تو ہم نے بڑے مشکل سے ہم نے ان کو اریسٹ کر لیا. ہم نے ان کے جو لنکس تھے, ان کی والدہ سے جو ہمیں لنکس ملے ہیں, ان کے بھائی کو اریسٹ کر کے ان سے جو ہمیں گائیڈ ملا, تو ادھر جا کے پھر ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا. اس سے ویپنز بھی برآمد ہوئے. اس نے جو ویپنز ہے وہ اپنے دوست سے لیے تھے, اور بلیٹس وغیرہ بھی, اور گھر والوں کو بھی بتایا تھا کہ میں اسی طرح یہ مرڈر کروں گا. گھر والوں کے علم میں تھا؟ علم میں تھا ان کے. لیکن یہ تو جو آپ بات بتا رہے ہیں انویسٹیگیشن میں, میرے خیال میں وہ انویسٹیگیشن ونگ ہی جانتا ہے, اور وہ ان کو کلیئر کریں. 21 روز کے بعد ملزم کو پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا. ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے, اور فردر اس پہ کتنے ملزمان ان کے ساتھی ہیں اس کے حوالے سے جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں. ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں کسی نئے ایشو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.